شاہ حسین المعروف لال شہباز قلندر کی درگاہ پر گھڑیال کی صدا زائرین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے پیچھے جو دو ویڈیوز دیکھی ہیں، پہلی ویڈیو کے اندر ایک گھنٹا بجایا جا رہا ہے۔ یہ گھنٹا کسی مندر کے اندر نہیں بجایا جا رہا، یہ گردوارے کے اندر نہیں، کسی کرسچنوں کے جو ہے نا چرچ کے اندر نہیں بجایا جا رہا، کیونکہ یہ عیسائی سکھ لوگ جب اپنے جو ہے نا چرچ اور گردوارے اور مندر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنی عبادت کا آغاز گھنٹے کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں جو داخل ہوتا ہے وہ گھنٹا بجاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ جو گھنٹا بجایا جا رہا ہے یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی مشہور شخصیت ہے، لال شہباز قلندر کے نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں اور لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور جب ان کا میلہ آتا ہے تو لوگ جوک در جوک گاڑیاں بھر بھر کے ان کے جو ہے نا میلے کے اوپر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا جب انٹر ہوتے ہیں لوگ تو اس گھنٹے کے ساتھ جو ہے نا اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ گھنٹا ان کے اس میزار کے اوپر بجتا ہی رہتا ہے۔ یہود و نصارہ سکھ عیسائیوں کی جو ہے نا یہ مشابہت آج کا مسلمان کر رہا ہے، وہ بھی ایک اللہ کے ولی کے میزار اور دربار کے اوپر۔ بات صرف یہی تک نہیں ہے دوستو، آگے آپ کو پاں پاں کی جو آواز بھی آپ نے سنی ہوگی دوسری ویڈیو کے اندر، یہ دور جاہلیت کے اندر جب کوئی حادثہ ہو جاتا تھا یا ایمرجنسی لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا تو وہ اس طرح کی آوازیں نکالتے تھے، وہ اس طرح کی آواز دیتے تھے، پھر لوگ جلدی کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ دور جاہلیت کی یہ رسم بھی جو انہوں نے اپنے اس لال شہباز قلندر کے میزار کے اوپر جاری کی ہوئی ہے۔ دوستو سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ لال شہباز قلندر ہے کون؟ لال شہباز قلندر ان کو لقب کس نے دیا؟ تو ہم سنتے ہیں بابا جانی الیاس قادری صاحب کی زبانیں۔ ویسے تو آپ ان کی جہالت کے حوالے سے ویڈیوز میرے چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن سنتے ہیں کہ بابا جانی الیاس قادری صاحب لال شہباز قلندر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ لال ہے یا لال ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہو رہا ہے، تو وہاں سے انہوں نے سوالات کیے ہیں۔ حضرت مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ قلندر وہ ہے جو خلائق زمانہ سے لوگوں سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو، شریعت و طریقت کا پابند ہو۔ ہر قلندر صوفی تو ہو سکتا ہے لیکن ہر صوفی قلندر نہیں، کیونکہ جہاں صوفی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قلندر کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ صوفی جب یعنی کہ چھوٹا صوفی، بڑا صوفی، اس سے بڑا صوفی، بڑا عبادت گزار، ایسا صوفی بن گیا کہ اس سے اب کوئی بڑا صوفی نہیں بن سکتا، یہ صوفی کی انتہا ہوئی، اینڈ ہوا۔ تو جب اتنا مطلب عبادت گزار پرہیزگار ہو گیا تو اب یہ قلندر کی طرف آیا، قلندر کی ابتدا ہوئی۔ یہ ایک مطلب انہوں نے مثال دی ہے۔ لال تو اصل لام عین لال، لال یہ قیمتی موتی کو بولتے ہیں۔ حضرت سیدنا شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی، اسی مناسبت سے آپ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب باغا امام حسین رضی اللہ عنہ سے عطا ہوا۔ چنانچہ منقول ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت سے فیضیاب ہوئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے۔ اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر۔ جی دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے۔ بابا جانی الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوفی ازم سے بھی کوئی اگلا درجہ ہے جو قلندر کا ہوتا ہے، جو ظاہری اور باطنی تمام جو ہے نا تجربات کر چکا اس کو قلندر کہتے ہیں۔ تو اتنا ہی یہ بلند مرتبہ ہے، اتنا ہی معزز مرتبہ ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی تک اور حضرت علی سے لے کر آخری صحابی تک کوئی بھی صحابی قلندر نہیں تھا جو ان کو یہ مرتبہ عزت مقام نہیں ملا جو ان کے جو ہے نا اس لال شہباز قلندر کو مل گیا۔ پھر جو ہے نا یہ بابا جانی کہہ رہے ہیں شہباز کا لقب جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو ملا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کسی اور کو تو یہ لقب ملا نہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ لقب دیا نہیں جو لقب انہوں نے اس لال شہباز قلندر کو دے دیا۔ خیر بابا جانی کی جہالت کی ویڈیو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں
लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के ऊपर होने वाली जहालत और शिरक के हवाले से। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए, आपने अपने आखिरी लम्हात में अपने अल्लाह के सामने दुआ भी की थी और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन को ये वसीयत भी की थी। और अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया था कि अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदा, अल्लाह मेरी कब्र को ईदगाह मेला गाना बना देना, यानी मेरी कब्र को ऐसा ना बनाना कि उसके ऊपर मेले शुरू हो जाएं। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से रोका था, बल्कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने यहां तक फरमाया था कि लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह यहूद नसारा पर लानत करे कि उन्होंने अपनी जो है ना अंबिया की कब्रों को वो सजदागाह बना लिया, उसको मसाजिद का मुकाम दे दिया कि वहां पे आके जो है ना सजदे करने लग गए। तो अल्लाह के नबी इस्लाम ने तो इस बात से पनाह मांगी है, लेकिन जिनको ये अल्लाह का वली कहते हैं, उस अल्लाह के वली के मज़ार के ऊपर जो है ना इन्होंने इस कदर जो है ना बड़ा वो दरबार भी बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे लोग आके सजदे भी करते हैं। देखने से ताल्लुक़ रखती है। अले मलंग एहतराम में हाथ जोड़कर उल्टे कदमों दरगाह से वापस जाते हैं। सिर्फ सजदे ही नहीं करते दोस्तों, इस मज़ार के ऊपर तो शिरक और जहालत की इंतहा हो चुकी है। यकीन माने ये जो पीछे 4-5 दिन पहले मेला लगा है, लाइव जो मनाजर देखने को मिले, दिल खून के आंसू रोते हैं। यानी बैतुल्लाह अल्लाह का वो घर है जिस जैसा कोई घर नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके साथ कुछ इबादत को खास किया हुआ है, जैसे कि एक तवाफ जो सिर्फ बैतुल्लाह का किया जा सकता है, इसके अलावा ये इबादत कहीं पे नहीं की जा सकती, किसी चीज का तवाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां लाल शहबाज कलंदर के दरबार के ऊपर लोग आपको इनके मज़ार का तवाफ करते हुए नजर आएंगे। नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी तवाफ की वो इबादत जो अल्लाह ताला ने अपने घर बैतुल्लाह के साथ खास की थी, इन जालिमों ने उस इबादत को इस लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के साथ जोड़ दिया, और यहाँ पे भी 7 फेरे लगाते और कहते हैं आपकी मुश्किलें दूर होंगी। आप ये वीडियो देख लें। ये वो जगह है, लोग यहाँ पर 7 चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं। यहाँ 7 चक्कर लगा के नीचे जाकर शैतान को पत्थरियाँ मार रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। ये कौन सी जगह है, लोग 7 चक्कर लगा रहे हैं, आप भी यहाँ आए? ये मुर्शिद लाल जब प्रवास करते थे ना तो वापसी कर आते, तो इसी वजह से लोग यहाँ 7 चक्कर लगा रहे हैं। जी, क्या होता है 7 चक्कर लगाने से? पता नहीं, लफ्ज़ लगाते हैं तो लोग लगा रहे हैं। तवाफ करते हैं, ये तवाफ करते हैं चीज़ों से, तवाफ़ कर रहे हैं। हाँ जी, ये तवाफ कर रहे हैं। तवाफ़ तो बैतुल्लाह में होता है ना, तो यही तो मुर्शिद की फुकरा है, ये उनके यही चीज़ें करने के लिए आई है। तो उधर भी जो वो हज होता है, इधर फकीरों का हज होता है। मतलब कि ये भी एक किस्म की हज है। ये जो फकीरी फुकरा आई है, ये उनका हज ही है। क्या होता है फिर 7 चक्कर लगाने से? 7 चक्कर लगाने से इंसान की जो दिली मुराद होती है वो उसको अपनी पूरी करने की कोशिश में ये तवाफ करता है। सारे ये मुर्शिद के सारे कायदे कानून है, इधर जिसने आना है वो मुर्शिद के कायदे कानून से ही आना है। कहाँ से आप आए? लाहौर से आए। क्या कर रहे हैं? मुर्शिद के दरबार पे आए, इस्लाम करने, इधर एंजॉय करने आए। ये क्या कौन सी जगह है? की बारगाह है, ये इधर चिचिला कटा है, उसने 40 साल इधर गुजारे, प्रवास करता है सरकार सेवन से। तो ये 7 चक्कर लगा रहे हैं लोग, आपने भी यहाँ चक्कर लगाए? जी, 7 चक्कर लगाएगा, इधर हमारा इस्लाम कबूल होएगा। कहाँ से आप आए? हम पिंडी से आए हैं भाई। ये क्या चीज़ है, लोग 7 चक्कर लगा सरकार रहे का हैं? तख्त है, इधर सरकार हो प्रवास करते थे इधर से। अच्छा, जी जी, ये नीचे है चिलगा है। ये जो 7 चक्कर लगा रहे हैं, ये किस वजह से? मैं तो 19 साल से आ रहा हूँ, इसी तरह हम भी 7 चक्कर लगाते हैं। बोलते हैं कि साईं इधर प्रवास करते थे तो इधर दिल की मुरादें पूरी होती है, सब इधर दुआ करते हैं। 7 चक्कर तो काबतुल्लाह को लोग लगाते हैं ना। ये भी सरकार ने जो सबक दिया है ना, ये दुनिया लगा रही है, ये पागल इतने दूर से आ रही है, इतना कीमती टाइम ज़ाया करके आ रही है। ये सब हमें भी इसी तरह बड़ों ने बताया, हम भी 19 साल से आ रहे हैं। आज जी दोस्तों, आप वीडियो देख चुके हैं कि किस तरह लोग जो ना इस लाल शहबाज कलंदर के जो है ना मज़ार का तवाफ करते हैं। इससे बढ़कर शिरक क्या हो सकता है। यानी जो इबादत एक अल्लाह के लिए खास थी, उन्होंने अपने मज़ार और अपने इस बुजुर्ग के नाम जोड़ दी है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज और उम्रे के मौके पे एक और इबादत को खास किया कि जहां हाजी लोग जब जाते हैं तो वहां पे शैतान को कंकर मारे जाते हैं। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, आपका हुक्म भी है, आपका तरीका भी है। जो हज करने के लिए जाए वहां ऐसा उसको करना चाहिए, तब जाके उसका हज उम्रा मुकम्मल होगा। तो ये जो इबादत अल्लाह ताला ने वहां शैतान को कंकर मारने की रखी, इन जालिमों ने लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के ऊपर, इनके दरबार के ऊपर वो इबादत भी यहाँ लाके चोरी करके यहाँ पे खास कर दी। और यहाँ पे भी जाहिल जाने वाले ये लोग कंकर मारते हैं, और उससे फिर पूछा जाए ये कंकर आप क्यों मारते हैं, तो कहते हैं हम ये कंकर शैतान को मार रहे हैं। आप पहले वीडियो देख लें। 1 सेकंड भाईजान, किसको आप लाठी मार रहे हैं इतनी तेज से? शैतान को मार रहा हूँ। कहाँ पर है शैतान? इसके अंदर है। ये बेगरत शैतान है, सारों पे हावी हो जाता है। लानती था ये बेशुमार, इस पे इसने बहुत जुल्म किए।
ये है क्या चीज? लानती किसको पत्थर मार रही हैं आप? शैतान को। कहाँ पर है शैतान? हाँ, शैतान मौलाना शैतान। जब भी मेला लगता है इसको हर बंदा आके ना इसको जना पत्थर मारता है। आप भी पत्थर मारना शुरू हो गए? और क्या, मैं देखो ये मैं जब भी आता हूँ इसको 1 घंटा पूरा पत्थर मारता हूँ। जी दोस्तों, आपने वीडियो देख ली है कि किस तरह जहलियत की इंतहा हो चुकी है, शिरक की इंतहा हो चुकी है। अब इन लोगों को कोई समझाए तो फिर ये गालियां देते हैं, आगे से अपनी बकवासात करते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, यानी शरीयत की जो खिलाफ वर्जी हर हद तक हो सकती है वो इस मज़ार और दरबार के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। इस दरबार के ऊपर जो है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहयाई और फहाशी को हराम किया और जो है ना औरत को पर्दे का हुक्म दिया। लेकिन इस दरबार और मेज़ार के ऊपर जो ना आपको औरतें डांस करते हुए, मुजरा करते हुए नजर आएंगी और सवाब समझकर जो यहाँ से लोग गाड़ियां भर भर के जाते हैं, वहां जाकर ये औरतों का डांस और मुजरा देखते हैं और फिर जो है ना अपने दिलों को ये सुरूर पहुंचाते हैं। आप पहले ये वीडियो देख लें। जी दोस्तों, आप वीडियो देख चुके हैं कि किस तरह बेहयाई, फहाशी, उरियानी जो है ना इस लाल शहबाज कलंदर के मेले के ऊपर, दरबार और मेज़ार के ऊपर आपको नजर आएगी। और ये सरेआम हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई इनके ऊपर फतवा लगाने वाला नहीं, कोई इस हरामकारी को बंद करवाने वाला नहीं। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इनके बड़े बड़े उलमा और मौलवियों के मुंह बंद है, इसके ऊपर खुलते ही नहीं है। देखो किस तरह जो है ना ये अपने फहाशी को फैला रही है। बात दोस्तों सिर्फ यहीं तक नहीं है, बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है कि इस मेज़ार के ऊपर जो है ना लोग वो मातम करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। डांस के साथ साथ, मुजरे के साथ साथ मातम करते हुए भी वो आपको इस मेज़ार के ऊपर दिखाई देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन लतमल हुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया, जिसने कोई ऐसी पुकार जहलियत की तरह निकाली, अपने चेहरों को पीटा, गरेबानों को फाड़ा, उसका मेरे साथ ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन इस मेज़ार और दरबार के ऊपर ये जहालत की इंतहा भी है कि लोग मातम करते हैं, यानी हर तरह का सीन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे सीना को भी करते हैं और फिर शबीह अब्बास के नाम से इन्होंने जो है ना यहाँ पे शबीह रखी हुई है, उसकी जियारत भी करते हैं। आप देख लें किस तरह ये जालिम लोग इस मेज़ार के ऊपर मातम करते हैं और शरीयत का मजाक उड़ाते हैं और हदूद को फलांगते हैं। आप वीडियो देखें। अफसोस होता है कि एक शख्स को अल्लाह के वली का नाम दिया जाए और फिर उसका मेज़ार, दरबार बनाया जाए और फिर उसके ऊपर इस तरह की हरकतें की जाए। बात सिर्फ यही तक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना इन्होंने अपना ज़मज़म भी बनाया हुआ है, एक कुआं, गंदा गटर का पानी है, वो लोगों को पिलाते हैं कि ये पी ले, आपको शिफा मिलेगी, आपको औलाद मिलेगी। यानी जिस तरह ज़मज़म के पानी के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, ये जालिम उस तरह के ज़मज़म का पानी जो है ना और गटर का पानी लोगों को पिलाते हैं और शिफा के लिए पिलाते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि किस कदर ये जहालत और शिरक की इंतहा है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। इनके सुनियों के बड़े बड़े मुफ्तियों को, अलामाओं को इसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और जोर जबरदस्ती इन सारी खराफात और बिदात को रोकना चाहिए। अल्लाह के वली के मेज़ार का नाम लेके जो है ना उस मुकद्दस जगह के ऊपर इस तरह की सारी बिदात और खराफात होती हैं। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया था, तुम कब्रिस्तान जाओ ताकि तुम्हें मौत याद आए, लेकिन तुम्हें यहाँ पे मौत याद आना, अपनी जो है ना कब्र की याद आना तो दूर की बात है। यहाँ कब्र और मौत इंसान को भूल जाती है।
दुनिया की रंगीनियों के अंदर खो जाता है। जाता तो ये कब्र और मेजार के ऊपर है, लेकिन जो फहाशी, जो उरियानी, जो बेहयाई शायद बाजारों के अंदर आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए। अगर उठानी चाहिए तो फिर आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, ताकि हो सकता है किसी को अकल आ जाए, किसी को समझ आ जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर मेरे आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर ले। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।